हाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है वाइट डेजर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वाइट डेजर्ट कुछ इंडिया गुजरात टूरिज्म। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वाइट डेजर्ट कच्छ इंडिया गुजरात टूरिज्म। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। કહેવાની જરૂર ખરી કે આપણે હું ક્યાં આવી ગઈ છું? ચોમાસામાં ઓલો વાગડ ભલો પછી ભાષામાં એમ કહેવાય પાંજો અસાજો મુજો ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય એ મારો કચ્છનો બારે માસ. રણોત્સવ એટલે ગુજરાતનો એકમાત્ર ફેસ્ટિવલ જે 100 દિવસ ચાલે છે. 20થી પણ વધારે દેશના આશરે 5 લાખ જેટલા મુલાકાતીઓ દર વર્ષે કચ્છની મુલાકાત લે છે. એ વસ્તુ અલગ છે કે આ વખતે કોરોનાના લીધે આ આંકડા ઉપર અસર પડી છે, પરંતુ ટેન્ટ સિટીની આગતા સ્વાગતા અને સગવડમાં કોઈ જ અભાવ જોવા ના મળ્યો. રણની વચ્ચોવચ્ચ આ ટેન્ટમાં મળતી સગવડો જુઓ તો એક સવાલ તો ચોક્કસ થઈ જાય કે શું ખરેખર આ બધું ટેમ્પરરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે? ગેમિંગ ઝોન હોય કે ફૂડ કોર્ટ, આર્ટ ગેલેરી હોય કે ફોટો બૂથ એરિયા, રણોત્સવ એટલે ભલ ભલાની અંદર કચ્છી ભાવ જગાડી દે ને એવી જગ્યા. અને એમાંય
ધોરડોમાં આવેલા રણની સાથે સાથે બીજું શું ફેમસ છે જો કોઈ એવું પૂછે તો કહેજો ભૂંગા, અ ટ્રેડિશનલ મડ હાઉસ ઓફ કચ્છ જે ભૂકંપ પ્રૂફ હોય છે. આ જે લીપણ કરેલું છે ને એ ચીકણી માટી અને ગોબરને ભેગું કરીને કરવામાં આવે છે, જેથી 45ની ગરમીમાં પણ તમને ઠંડકનો અહેસાસ મળે અને 2 ડિગ્રીની ઠંડીમાં હૂંફ મળી રહે. ભૂંગાની છત બની છે બાંબુ, લાકડું અને ઘાસ ભેગું કરીને, જેથી ક્યારેક ભૂકંપ આવે તો માટીની દિવાલ બહારની સાઈડ પડી જાય અને ભૂંગાની છત જેમાં 10 થી 12 ફૂટનો ગેપ હોય છે ને એ જમીન ઉપર આવતા માણસનો જીવ બચે. આ તો મેં છે ને તમને ભૂંગાનું લેટેસ્ટ વર્ઝન બતાવ્યું છે જે ગાંધીના ગામમાં છે. સુરવાણી ગામની મુલાકાત લો તો તમને હજુ પણ ઓલ્ડ સ્ટાઇલ ઓરિજિનલ ભૂંગા જોવા મળે. જો તમે રણોત્સવમાં આવો છો, ટેન્ટ સિટીમાં આવો છો તો એની આજુબાજુના વિસ્તારના જેટલા પણ ગામડા છે ત્યાં પણ અલગ પ્રકારના ભૂંગા છે અને એ તો રિસોર્ટમાં પણ કન્વર્ટ થયા છે અને અમુક જગ્યાએ હોમ સ્ટેની પણ સુવિધા છે. તો જો તમે કચ્છમાં આવો છો તો ભૂંગામાં રહેવાનું ચૂકતા નહીં. કચ્છ વિશે ઘણી બધી વાતો વાંચી છે, જેમાંથી એટલું તો હું ચોક્કસ કહી શકું કે કચ્છ એ મેજિકલ છે અને અહીંના લોકો અત્યંત માયાળુ. પેલું કહેવાય છે ને, અચો પખી પર દેસીડા તો કે સીને સે લગાયા. મારી કચ્છી એટલી સારી નથી, પરંતુ આ મેં અનુભવ્યું છે કે કચ્છની મહેમાન ગતિ, એનું ગાણું અને એનું ભાણું એને કોઈ ના પહોંચે. ધોરડોનો એપિસોડ તો અહીંયા પૂરો, પરંતુ આવનારા એપિસોડમાં આ ગાડી ક્યાં જઈ રહી છે? સ્ટે ટ્યુન ટુ મારી નજરે ગુજરાત. जी जनाब, तो ये था रंग कच्छ का रेगिस्तान, चोलिस्तान, क्या कहेंगे इसे, वाइट कलर की सेंट. वाकई ये जो इसको बहुत स्पेशल कर रही थी और बहुत यूनिक कर रही थी वो इसकी वाइट सैंड थी. इसके अलावा यहाँ के सॉन्ग्स, यहाँ का फूड, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत फेमस, बहुत मतलब यूनिक, एक अलग ही दुनिया. मैंने देखा है शहर में अगर कोई आपसे मिलने आए तो वहाँ पे खैर मेहमान नवाजी तो खैर वहाँ पे भी होती है, लेकिन इन जगहों की मेहमान नवाजी कुछ एक ऐसी बात होती है कि आप भूल नहीं पाते. असल में मैंने भी नोट किया है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, देहात में, विलेजेस में अगर आप एज ए गेस्ट कहीं जाते हैं तो आप बहुत क्या जान निसार करने को तैयार हो जाते हैं. यानी कि उनके घर में अगर एक बकरा हो, गाय हो, मतलब काट देते हैं जानवर, अपने मुर्गियां काट देते हैं. और मतलब हालांकि उनको उससे लॉस है, मतलब उनका उसी से रोज़गार होता है, लेकिन ये है कि आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते. कोई कसर नहीं, मतलब आप खुशी खुशी आओगे. अच्छा, गुजरात, गुस्सा आएगा कि यार ये गुजरात में है ना? गुजरात, ये गुजरात का जो मतलब रेगिस्तान की बात हो रही थी, वैसे गुजरात जो है ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब है कि एक बिजनेस कारोबारी लोग होते हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, मुझे इस चीज़ की इन जगहों की ये स्पेशलिटी बहुत पसंद है कि मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे. मैं बता रहा था कि गुजरात के लोग बड़े व्यापारी होते हैं, कारोबारी होते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़, पूरे गुजरात की बात करूँ, ये तो एक डेजर्ट एरिया था. दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी है ना, यानी कि एक होती है जदीद व्यापार, उससे ये दूर है. अच्छा, ये मतलब है कि पुराने तरीकों पे, लेकिन ऐसा कारोबार कि आपकी सोच है खरा कारोबार, मतलब कारोबारी सोच, बिजनेस, हर चीज़ में बिजनेस. और पाकिस्तान में बहुत बड़ी गुजराती कम्युनिटी रहती है, कराची में, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में. गुजराती, कच्छी बहुत रहते हैं, कच्छी ज़बान बोलते हैं. कुरो करे तो कुरो है, मतलब एक इनकी लैंग्वेज है, जिस हमारे मोहल्ले में भी, हमारे इलाके में भी रहते हैं, कुरो है. अच्छा, ये सारे, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, कितनी लैंग्वेज हैं. जैसे कराची में मैं सुनता हूँ या कुछ जानने वाले मिलते हैं, गुजराती, घांची, कच्छी, इन सब का पीछे से लिंक इंडिया से निकलता है. ऑब्वियसली ना, सब मतलब सबका आप किसी से भी पूछोगे कि आप बेसिकली कहाँ से हो तो वो बोलते हैं हम इंडिया से. मतलब क्या ये जो जगह है ये खाली पड़ी थी क्या, जो पाकिस्तान बना है? क्या ये मैदान दिया था क्या, वहाँ से सब आए?
मतलब अक्सर मैंने नोट किया, माइग्रेटेड है वहाँ से ज़्यादातर, मैंने आप सही कह रहे हैं। है ना, मैंने अक्सर नोट किया है कि गुजरात के लोग, अच्छा, हम अपने आबाओ अजदाद पूरी से पूरी पूछते हैं पूरी तो वो भी यही कहते हैं, हाँ ना। चाहे मैं अपने ननियाल की बात करूँ या ददियाल की, दोनों यही कहते हैं कि हम इंडिया से माइग्रेटेड हैं। यहाँ पर बहुत सारी मतलब ऐसे लोग हैं कि जो मतलब गुजराती हैं, पूरे पूरे इलाके, यानी कि एक पूरा मोहल्ला होता है ना, जो पूरा इलाका, वहाँ पे वही कम्युनिटी रहती है, गुजराती, घांची, गुजराती, मतलब बहुत मेमन बहुत, मतलब ये हमारे यहाँ पे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार ज़्यादातर, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं सारे, मतलब उनके इंडिया और पाकिस्तान बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 75 साल हो गए, 74 साल, तो उनको अच्छी तरह याद है। ज़्यादातर तकरीबन यहाँ पे जो बुज़ुर्ग है ना, वो अपने वालिद का बताते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा परदादा दादा, ऐसा नहीं बताते, अपने वालिद का बताते हैं कि मेरे वालिद वहाँ से आए थे, मैं छोटा था, मेरे वालिद वहाँ से आए थे, मैं छोटा था, इस तरह बताते हैं वो। तो एक खूबसूरत जगह टूरिज़्म के लिए, और ये जो टेंट लगाया हुआ है, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है गुजरात टूरिज़्म के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, गुजरात टूरिज़्म के लिए भी है, और इनका एक कल्चर जो है ना बहुत खूबसूरत, ट्रेडिशन कल्चर इनका खूबसूरत है, और जगह खूबसूरत है, और बिजनेस कम्युनिटी। रात में देख रहे हैं डेजर्ट एरिया इतना अच्छा सजाया हुआ, लगाया कितना प्यारा लग रहा था, लाइटिंग्स। बाकी ये कि वो वीडियो थी गुजराती में, प्योर गुजराती में, तो इतनी अच्छा टाइटल था, हम पढ़ पाए और समझ पाए। अच्छा, आपको गुजराती समझ आ रही थी, मैं नोटिस कर रही हूँ, हाँ है ना, थोड़ी बहुत शायद के मोहल्ला, थोड़ी बहुत नहीं, मैंने देखा 70% आप बता रहे थे वर्ड टू वर्ड, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। उसकी मैं सबटाइटल पढ़ रही थी फिर भी, लेकिन आप फौरन बता दे रहे थे। उसकी वजह मुझे खुद समझ में नहीं आई कि ये ज़बान मैंने नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन इसमें से कुछ, हाँ, लेकिन इसमें से कुछ अल्फाज ऐसे थे जो हमारे यहाँ कच्छी लोग, घांची लोग, गुजराती लोग जो हमारे आसपास मोहल्ले में रहते हैं ना, तो उस तरह के, मतलब अच्छा, कुछ ज़बानें जैसे आपने देखा है उर्दू हिंदी बहुत मिलती है, कुछ अल्फाज निकल आते हैं, तो ऐसा लगता है मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आपस में, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स उसके उसमें, तो इससे आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। अगर आप कोई और ज़बान भी समझते हो तो आप एक नई ज़बान को भी अंडरस्टैंड कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स उसमें मिलते जुलते आ रहे होते हैं। आपको पता है कराची में गुजराती अखबार भी निकलता है। अच्छा, गुजराती लैंग्वेज का अखबार यहाँ निकलता है, और ये पढ़ा भी जाता है। यहाँ पे लोग लेते हैं, पुराने सिटी में हमारे, मतलब बहुत लोग रहते हैं। असल में मेरी जो रिहाइश है, हमारी जो रिहाइश है, वो जो है थोड़ा सा ओल्ड सिटी की तरफ है, यानी कि कराची जो है वो बहुत बड़ा एक सिटी है, तो कराची बढ़ता गया, एक डेवलप होता गया। तो मेरा जो शुरू से है वो, हम लोग थोड़ा पुराने सिटी में रहते हैं, यानी जो शुरू से था। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी गुजराती अखबार लेते हैं, गुजराती अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा। यानी कि जिसकी जो ज़मीन होती है ना, जहाँ से जिसका स्टार्ट होता है आबाओ अजदाद का, मैं कहता हूँ 4 नस्लें उसकी ख़त्म हो जाए, पीछे उसकी आने वाली नस्लें आ जाए, लेकिन जिसको पता होगा मैं वहाँ से हूँ ना, यकीन करें, मतलब एक लाशऊर होता है ना इंसान का, एक होता है शऊर, एक होता है लाशऊर। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूँ आपको, आप के बड़े जो आए थे इंडिया से, आप ईमानदारी से बताएं, दिल करता है ना कि अच्छा इंडिया में थे, उनके बाप दादा थे इंडिया में, वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी होगी, तो एक दिल वहीं अटकता है। अच्छा, अपनी जो ज़मीन होती है ना इंसान की, जहाँ कंट्री से इतना रिलेट खुद को कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं वही आपकी वाली बात, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि परदादा दादा, मेरे दादा और मेरे नाना बेसिकली वहीं से थे, ठीक है, तो यहीं से नस्ल चलती है। एक बनारस से थे और एक मैंने आपको बताया था लखनऊ से थे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, और अभी भी यकीन करें, आप ये बात करें, मैंने इतने लोगों से बात करी है, लेकिन नॉर्मल जो कॉमन पीपल है ना, कोई भी कभी भी किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया बुरा है, ऐसा ही या इंडिया कभी जाना नहीं चाहेंगे। हर किसी के दिल में एक अरमान है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उस जगह पे जाना चाहते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूँ छोटी सी, कि एक शख्स बैठा हुआ था, तो वो सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध है, वहाँ से किसी गाँव से ताल्लुक़ रखता था, सक्खर से। तो उस एक और शख्स इत्तफाक से मेरा जानने वाला वहीं पे आ गया, एक छोटी सी, मतलब बैठे हुए थे सब लोग, वो भी सक्खर से था। तो मैंने दोनों का तारुफ करा दिया। मैंने कहा यार ये सक्खर से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप भी माशाल्लाह सक्खर से, आपकी फैमिली भी सक्खर में, वो भी कराची में रह रहे थे, ये भी कराची में, ये फैमिली के साथ रह रहे थे, वो अकेला आके रह रहा था। जब दोनों ने सुना ना सक्खर के, आप यकीन करें दोनों को इतनी खुशी हुई आपस में मिलके, यानी कि अपनी ज़मीन से कोई आया वो। हालांकि इससे क्या है, यानी कि वो भी इंसान है, हज़ारों लोग इंसान है, अपना बंदा, अपनी ज़मीन, अपना एक पुराना ताल्लुक़, तो एक इंसान की नेचर में शामिल है। बिल्कुल ऐसे है।
तो बहरहाल बहुत खूबसूरत वीडियो। गुजराती हमें इतनी समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और जब वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वो यकीन करें फ़ख्र से बताते हैं। उनके लहजे में एक तशनगी सी होती है। अगर उनके बड़े थे तो वो ये कहते हैं कि हम भी वो जगह देखना चाहते हैं, हम इंडिया जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आ गए तो इंडिया को भूल गए, नहीं, इंडिया की इमेज उनके माइंड में एक मैं आपको बताऊँ ना कि कोई भी शख्स इंडिया से अपना ताल्लुक़ बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा है, मतलब दोबारा जाना चाहता है। अच्छा वो कहते हैं आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं हम, बम्बई से हम। हमारे बड़े जो हैं इनके दादा वगैरह या दादी वगैरह तो वो बात करती थी कि हम बनारस से हैं। अब वो कोई और बोलते थे कि हम दिल्ली से हैं। जैसे उनकी कोई फ्रेंड है, मोहल्लेदार, कुछ भी, तो वो अपनी स्पेशलिटीज़ बता रहे हैं, वो अपनी फिर वो रिलेट कर रही है दोनों एक दूसरे की बातों से। हाँ ऐसा होता था, फिर वो बोले हाँ ऐसा भी तो होता था। तो ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी जान पहचान है, कितना अच्छा है सब कुछ। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे अभी मेरे मुंह से गलती से निकल गया मुंबई या कुछ और सिटीज़ भी हैं, या नोएडा है, या कुछ और सिटी हैं, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मखसूस शहरों से लोग यहाँ आए थे। मतलब ज़्यादातर हम कराची में, पाकिस्तान में दिल्ली वाले देखते हैं, बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। ठीक है, तो क्या दिल्ली के बहुत सारे लोग यहाँ आ गए थे, या लखनऊ के, या और बनारस से बहुत से लोग हैं, सारे लोग बनारस। तो ये चंद सिटी हैं ऐसे जहाँ से लोग आए थे। अब मिसाल के तौर पे कोई सा भी और सिटी का नाम ले लें, कोई सा भी। मुंबई से नहीं कहा किसी ने भी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने कहा मेरे बाप दादा मुंबई में, ऐसा भी नहीं कहा। मतलब कुछ सिटी है जैसे पुणे सिटी है। अच्छा अहमदाबाद से हम लोग हैं, मुझे कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं अहमदाबाद से। नहीं, सूरत सिटी का मुझे मैंने आपको बताया था, मेरी मामा की एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा था मैं सूरत से हूँ, लेकिन वो तो शादी करके आई थी। ठीक है ना, कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, 2 से 4 सिटी ऐसे हैं। आगरा भी कहते हैं, आगरा से हैं, बनारस से हैं, दिल्ली से हैं, कानपुर से हैं हम। कानपुर तो इतने मिलते हैं, क्या बताऊँ मैं। तो कहने का मतलब है कि चंद सिटी हैं। मुझे ऐसा लगता है जब पार्टीशन हुआ था तो एक दूसरे को देखा देखी हुआ था, यानी कि एक ग्रुप जा रहा है। अच्छा पटना से हैं, मेरे एक सर थे, वो हमें पढ़ाते थे कंप्यूटर, वो पटना से थे बेसिकली। बड़ी बात है, मतलब मैंने कम सुना है इस तरह, मैंने 2-3 सुने, मैंने इस तरह सुना। बरेली से हैं। देखिए मुझे इतनी सारी सिटीज़ इसलिए ना पता है कि ये सब मुझे टकरा चुके हैं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे इंडियंस या इंडिया से बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा टकराए। और अब पूरा इंडिया टकरा गया आपको। ये तो बहुत बुरी तरह टकरा रहा है। मुझे नहीं टकराएंगे, मैं उन्हें टकरा गई, लेकिन बुरी तरह टकरा गया। खैर दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत व्लॉग था इनका, और हमने इससे पहले भी एक इनका व्लॉग देखा था, बहुत ही खूबसूरत। बेशक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फुटेजेस बहुत अच्छे थे। नहीं, आपको तो समझ आ रहा था थोड़ा बहुत। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।